Now, good morning to all of you. गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. Good morning. Now, हम लोग जो थे yesterday we have learned about yes. Yesterday we have learned about up to the question number 3. Now today we will solve the question number 4. A well of a diameter 3 meter is dug. A well of diameter 3 meter is dug 40 meter deep. The earth taken out and it has been spread evenly all around it in the shape of the circular ring of width 4 meter. To form an embankment, find the height of the embankment. We have to find out the embankment. We have to find out the embankment. Now, how we will find out the embankment? That is the height of the embankment. The earth is taken out from the well. So this is the well. From this one, earth is taken out, and its diameter is 3 meter and depth is 40 meter is given. Diameter is 3 meter. Its diameter is 3 meter. So radius will be 3 by 2 meter. And the height is given 14 meter. Height is given 14 meter. And this, the earth taken out, or that is the mud taken out from the well, is spread all around the well in this way. And the height of the embankment, we have to find out the height of the embankment. That is, the embankment is made for, all around the well. You have watched the embankment. आप देखे होंगे कहीं पर जाके वेल के किनारे तो बैठते होंगे, तो बैठने वाला जो पोर्शन होता है चारों तरफ, वो जो बैठते हैं हम लोग, उसको बनाया जाता है। नहीं, बैठने के लिए बनाया जाता है ना चारों तरफ वेल के किनारे में, या बच्चे लोग उसमें कूद ना जाए, इस तरह से घेरा जाता है। तो उसको एम्बार्कमेंट से उसे अर्थ आउट टेकन किया गया और उसके ऊपर ये बनाया गया। तो वो पोर्शन जो होता है, वो पोर्शन को हम लोग राइज जो किए गए हैं, वो टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ, दैट इज द बेल से, वो मिट्टी जो है बेल से निकाला गया है और वो एम्बार्केट बनाया गया है। द डायमीटर, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द this point to this point is 4 meter. It is 4 meter. And the radius is 1.5 meter. The radius, that is 1.5 meter. So from the center of the well to the end of the embankment, the total length will be, that is, you can say that total length from here to here, from this point to this point, it will be 4.4 plus 1.5 meter, that is will 5.5 meter. So if you want to find out the height of this embankment, this circular cylinder, this is the cylinder, a type of the cylinder called portion, whose radius will be, that is the radius, this one will be R1 for the well and R2 for the embankment, that will be 5.5 meter. Now we have to find out the volume of earth taken out. Multiple people want to join the call. View all. Prachi Kumari. And someone, Neha Kumari. Prachi. प्राची सुन रही हो?
यू हैव टू गिव द आंसर, दैट इज यदि मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। प्राची चली गई, लेफ्ट हो गई सर। लेफ्ट हो गई। और ये क्या है? नेहा कुमारी कौन है? नेहा, नेहा, अच्छा ठीक है, अभी मैंने प्राची और नेहा को ज्वाइन करवाया था, ठीक है कोई बात नहीं। Now they are two cylindrical portions. That is, from one cylindrical portion, the earth is taken out, and in another one, it is kept to rise आवाज the. बढ़िया से नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा अच्छा से? अब आ रहा आवाज? यस सर। अब आ रहा आवाज होगा, ठीक है। That is the from one cylindrical portion, the earth is taken out, and in another one, it is kept to rise the height of the cylinder. Now, volume of embankment, मान लीजिए मैं ये embankment लिख दिया, इक्वल टू क्या होगा? That is the its volume. How we will find out the volume? That is, from here to here we have to find out the radius, that is the 5.5 meter, and then we will subtract this portion from the well. So this one is R1 and R2. So volume pi r square, यदि मान लिया जाए कि पाई आर स्क्वायर को मैं कर देता हूं, तो पाई आर स्क्वायर, तो R1, दिस वन इज R2, सो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होता है, इंटू हाइट। ये किस तरह से होता है ये मालूम है? कुछ है नहीं, हमने पूरा क्या करते हैं, इसको मैं आपको सही से दिखा देता हूं। ये सिलिंड्रिकल पोर्शन पहला है, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन का पहला हम निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे? पाई आर टू एच, पाई आर स्क्वायर एच। और दूसरा जो है कि ये पोर्शन जो है तो वैकेंट है, दिस पोर्शन इज वैकेंट वन, तो इसका से हम क्या करेंगे? रेडियस निकाल देंगे, माइनस करेंगे, तो पाई आर R1 स्क्वायर एच। तो ये जो वॉल्यूम बच गया वो एम्बार्कमेंट का बच गया, इस पोर्शन का बच गया। इस पोर्शन को हम लोग ने माइनस कर दिया, दैट इज 1.5 मीटर जो था रेडियस उसका, और डायमीटर 3 मीटर है, 1.5 मीटर जो रेडियस है, इस पोर्शन का मैंने हाइट लेकर इसी हाइट से, सेम हाइट से क्या किया कि इसका वॉल्यूम निकाला और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया एम्बार्कमेंट के पोजीशन से, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट निकल गया, क्योंकि मैंने रेडियस ऑफ एम्बार्कमेंट लिया है यहां से लेके यहां तक, दैट इज द फ्रॉम द पॉइंट सेंटर टू द लास्ट पॉइंट, so its radius will be 5.5 meter, so R2 will be 5.5 meter, and we will subtract, because this is empty one, this portion is empty, so I will subtract 1.5 meter radius with 1.5 meter radius, so the cylindrical portion with 1.5 meter radius will subtract, then we will get pi, same formula, that is R2 square minus R1 square H. So this is the volume of embankment, and the volume of embankment will be equal to the volume of cylindrical portion, that is well. So volume of well, that is pi r, that is R1, this one is the R1, so R1 square multiplied by H2, that is height, this height is for the embankment, and this is the height, let it to 1, and this one is H2. So what is the H2 height? Is 14 meter. It is 14 meter. So according to question, दोनों बराबर होगा, that is the pi, this one R2 minus R1 H1 equal to pi R1 H2, तो पाई पाई तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, इसको मैं लिख सकता है R2 प्लस R1 and R2 minus R1, and H1 we have to find out. R1 is given
here 1.5. So that is the 3.2 multiplied by 3.2 and multiplied by h2, it is 14. Now r1 plus r1 plus r2 plus r1, that is 5.5. We can put it 5.5 plus 1.5 and 5.5 minus 1.5 h1. We have to find out h1. इसको सिंपल से डिवाइड कर सकते हैं, 7 यहाँ कर देता हूं, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. ना उस पोर्शन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूं और कर देता हूं इसको, और ना, और यहाँ मैं लिख देता हूं उस पोर्शन को. यहाँ हो जाएगा 7, इसको जोड़ेंगे वहां से घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो 4, ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू h1 इक्वल टू दैट इज 3/2, 3 and 7. Who is that? रिया कुमारी. मुझे नहीं मालूम मगर ये तो लग रहा है, एडमिट कर दे रहा हूं रिया कुमारी. ठीक है. Now this one is cancel out. Now it is h1 equal to 9/8. 9/8 आ गया. कितना हाइट आएगा मुझे खुद नहीं मालूम, उसका कितना हाइट आएगा 9/8. तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 लेफ्ट, तो 1 पॉइंट कितना आएगा 125. कितना आएगा 1 लेफ्ट 1 10 1, तो 2 लेफ्ट होगा 16 2 25, 1.125 सेंटीमीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट. समझ में आया इसको? एनीवन? प्रकृति, गुड मॉर्निंग सर. समझ में आया ये? सर मैं अभी ज्वाइन की हूँ. अच्छा अनमोल? यस सर. सर एक बार और. ठीक है अनमोल कुमारी, समझ में आ गया. इसको समझ में आया? यस सर. ठीक है, मैं इसको एक बार और समझा देता हूं. नेहा कुमारी. यस सर. कुमारी नेहा, समझ में आया? ठीक है. धुंधला दिखाई दे रहा? यस सर. यस ब्लड आ रहा है. अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं, और तो कुछ कर नहीं सकता. अब दिखाई दे रहा? नहीं सर. दरवाजा बंद कर दिया? नहीं सर. नहीं दिखाई दे रहा है. अरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारे घर में हो. आप दिखाई दे रहा? सर अब और ब्लर आ रहा है. और गलत आ रहा? अब देखो. यस सर अब दिखाई दे रहा है. अब दिखाई दे रहा है ना? यस ठीक है. नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो बंद रूम था. देखिए किसमें क्या दिया हुआ था. एक वेल से मिट्टी निकाला गया, दैट इज द अर्थ इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल एंड दैट इज स्प्रेड ऑल अराउंड द वेल टू मेक ए एम्बार्कमेंट. एम्बार्कमेंट जो था वो हम लोग चबूतरा जो कहते हैं, कुआं के चारों तरफ जो चबूतरा बनाया जाता है ना, तो मिट्टी से पहले उसको उठाया जाता है, उसके बाद हम लोग उसको सीमेंटेड कर देते हैं, और सीमेंट करके या ईटा से फिर उसको हम लोग जोड़ देते हैं. उसी तरह से एम्बार्कमेंट बनाया जिसपे हम लोग बैठते हैं. नहीं, हम लोग कुआं के चारों तरफ बैठते हैं ना, तो उस कुआं के चारों तरफ बैठने के लिए जो एम्बार्कमेंट बनाया जाता है वो जो इस तरह से रहता है. कुआं रहता है बीच में और उसके चारों तरफ बैठने के लिए जो है पोर्शन बनाया जाता है. तो इस पोर्शन का हमको हाइट निकालना, तो वो भी एक प्रकार का सिलेंडर टाइप का ही होता है, सिलिंडर टाइप का होता है.
उसका हम लोग को क्या था, विड्थ दिया हुआ था, ये डायमेंशन दिया हुआ था, यहां से लेके यहां तक का जो डायमेंशन है 4 मीटर दिया हुआ था। और डायमीटर ऑफ द वेल जो था, वो कुआं का डायमीटर जो था 3 मीटर था। तो इसलिए हम कुआं का रेडियस जो निकाले हैं वो R1 3/2 निकाले, दैट इज 1.5 मीटर आया। नहीं, रेडियस जो हुआ 1.5 मीटर आया। अब इंबार्कमेंट का जो रेडियस है वो तो हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम सेंटर टू एंड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो सेंटर से 4 मीटर था, नहीं इसको हम लोग R2 कहते हैं, तो 4 मीटर था प्लस 1.5 मीटर, दैट इज 5.5 मीटर। R2 जो आया वो 5.5 मीटर आया। अब हम इसको सॉल्व करना था। इससे जो वॉल्यूम निकलेगा, वेल का जो मिट्टी निकला है उसी को स्प्रेड किए हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल विल बी इक्वल टू द टोटल अर्थ दैट इज स्प्रेड ऑल अराउंड द वेल टू मेक एन एम्बार्कमेंट। So the volume of embankment will be pi R2 square minus R1 square into H1. That is the, मैं सिंपल समझा दिया फिर से, दैट इज पहले एक एम्बार्कमेंट का पूरा वॉल्यूम निकाले यहाँ से यहाँ तक का, तो एम्बार्कमेंट का पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब माइनस, हमने इस पोर्शन को माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ तो मिट्टी स्प्रेड नहीं किए हैं, तो उस लिंकर पोर्शन को माइनस कर दिया, तो आर पाई R1 स्क्वायर H1। तो फिर फॉर्मूला वही आ जाता है, दैट इज R पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर इनटू H1। Now this is the volume of embankment, and now the volume of the well, that is the well volume of the earth taken out from the well होगा, यहाँ पर ही volume of earth लिख दीजिए, earth taken out from the well। मैं हड़बड़ी में लिख दिया हूँ, थोड़ा फास्ट लिख दिया, मगर टेकन आउट, अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इक्वल टू पाई, यहां पर जो है वो पाई R1 स्क्वायर H2 हुआ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इक्वल विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट। सो पाई R2 माइनस R1 H1 इक्वल टू, इसको हम लोग पुट कर दें, पाई पाई का वैल्यू कट गया, ये फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसको सॉल्व करने में आसान हुआ, यहाँ पे हम सॉल्व किए, उसको यहाँ पे एक्सटेंड करके यहाँ लाए, यहाँ पर डिवाइड किए और H1 निकला 9/8, दैट इज 9/8 आया आपका, और उसको डिवाइड करने पर 1.25 सेंटीमीटर मीटर होगा, सेंटीमीटर कैसे हो सकता है, मीटर होगा, है ना, मीटर, ये हुआ। इस तरह से हम लोग सॉल्व किए, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। Now question number 5. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है एक कंटेनर shaped like a right circular cylinder having the diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of the ice cream. The ice cream is to be filled into the cone of the height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. Having hemispherical shape on the top, find the number of such cones which can be filled with the ice cream. अब हमको एक सिलिंड्रिकल पोर्शन दिया है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो इस तरह से दिया हुआ है, ये दिया होगा जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। Now this ice cream is to be transferred into a cone, जो निकाल के देता नहीं है, आप देखे होंगे
मार्केट में वो जो आइसक्रीम रखता है, वो सिलेंडर जैसा एक केन होता है, उस केन में आइसक्रीम रखता है और उससे निकाल निकाल के हम लोग को कोन में देता है खाने के लिए। तो सेम कोन इस तरह का रहता है, इस तरह का कोन बना हुआ रहता है। और इस पे जो पोर्शन होता है स्फेरिकल पोर्शन होता है। आप देखे होंगे इस तरह से हम लोग बनाएंगे स्फेरिकल पोर्शन, इस तरह से स्फेरिकल पोर्शन भी होता है, इसी तरह से रहता है, हेमिस्फीयर जैसा रहता है वो। नाउ इस सिलेंडर से कितना इसका कैपेसिटी है और हाउ मेनी दैट इज द कोन टाइप, दैट इज द आइसक्रीम कोन जो हम लोग देखते हैं, वो फिल कर सकता है, कितना भर सकता है। Now the volume of that is the diameter is given 12 centimeter and height is 15 centimeter. Here diameter is 12 centimeter. It is 12 centimeter and height is 15 centimeter. And height of the cone to the cone of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. कोन का जो हाइट दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस जो है वो डायमीटर जो दिया हुआ है उसका डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस R1 मानते हैं, तो इसका जो है 12/6 दैट इज 6 सेंटीमीटर होगा। इसका डायमीटर जो रेडियस जो होगा R2 मानते हैं, तो इसका जो होगा 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर होगा ना। हमको इसका वॉल्यूम निकाल के और इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ हमको क्या मिल जाएगा, कोन मिल जाएगा। तो पहले वॉल्यूम ऑफ हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, छोटा छोटा ही निकालेंगे। वॉल्यूम आप सिलिंड्रिकल पोर्शन जो दिया सिलेंडर लिख दिया इस तरह से, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच R1 that will be R1 दे दिया तो सिंपल है, पाई रहने देता हूं। R जो है वो 6 सेंटीमीटर है, होल स्क्वायर, एच दिया है 15, ये सेंटीमीटर स्क्वायर मान ना। वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ कोन विथ स्फीयर दिया हुआ है, स्फेरिकल पोर्शन है ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, फेयर होगा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें यदि 1 एच है तो इसमें H2 मान लेते हैं, एंड देन 2/3 पाई आर 2 क्यूब, ये होगा नहीं तो इसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3 पाई आर इज 3 सेंटीमीटर, H2 for this one 12 centimeter plus 2/3 pi R2 that is 3 centimeter whole cube। इस तरह से हम लोग पुट कर देंगे ना। इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमको डिवाइड करना है। 1/3 पाई, ये 2 है तो 3 होल स्क्वायर निकाल लिया, ये और ये निकल गया, यहाँ 12 बच गया प्लस यहाँ 2 बचा और 3, ये 6 हो जाएगा। सो 1/3 पाई 3 होल स्क्वायर 18। Now number of this type of the shape that is cone with hemisphere will be total will equal to the volume of this one
one cone plus hemisphere multiply by number of the cone and hemisphere, that is the total volume will be equal to this one. So number of cone, let मैं cone ही मान लेता हूं, multiply by volume of cone equal to volume of cylinder of cylindrical portion. यदि मैं इसको लिखता हूं तो उसको सॉल्व करना है हमको, तो नंबर ऑफ कोन निकालना है, तो नंबर ऑफ कोन विथ हेमिस्फीयर लिख देता हूं, विथ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पोर्शन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन विथ, कोन लिख देता है यहां, कोन विथ हेमिस्फीयर अब ये डिवाइड करना होगा हमको, यहां दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर देता हूं, ऊपर में दिया है पाई, दिखाई दे रहा है यहां? यस सर। 15 और ये जो है 1/3 है, पाई आर स्क्वायर 18। ये कौन बच्चे हैं? ऋतुराज, someone want to join? ऋतुराज? यस सर। हाँ ठीक है, चेक कर रहे थे कि तुम ही हो कि नहीं। ये पाई पाई कट गया है ना, ये तो हम लोग इसको 6 से है, 6 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई पाई पाई काटने के बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर चला गया ये, उसके बाद नीचे में जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड कर दीजिए, 6 3 जा 18, 3 कट गया, 3 से 2 टाइम and 5. So number of cone with the hemispherical portion will be 10. कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बनाए, दैट इज द 5th वन। नाउ 6th वन बनाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन एक और बना लेते हैं हम लोग, 6th क्वेश्चन नंबर। Now question number 6, how many silver coin of 1.5 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5, 10 centimeter and 3.5 centimeter। तो पहले तो हमको क्वाइन का निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। क्वाइन दिया हुआ है, क्वाइन आप देखे होंगे सिलिंडर पोर्शन में क्वाइन इस तरह से रहता है, मान लीजिए क्वाइन है, इस तरह का क्वाइन आपने देखा होगा, क्वाइन तो आपके घर में है ही है, देखने की क्या बात है। इस तरह से क्वाइन होता है,
उसमें शेप बनाया हुआ होता है ऐसे से। ऊपर तो मैं हटा देता हूं, इस तरह से रख देता हूं, और इस तरह से कॉइन रहता है। अब ये कॉइन, कितना कॉइन हम लें जिसका जो कि एक क्यूबाइड के बराबर हो जाए। तो क्यूबाइड का शेप जो दिया हुआ है वो क्यूबाइड का शेप इस तरह से दिया हुआ है। क्यूबाइड का लेंथ दिया हुआ है, दैट इज द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड आर गिवन 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर यदि उसका लेंथ ही होगा और 5.5 सेंटीमीटर ये होगा, एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर दिया होगा, 3.5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड equal to 10 multiplied by 5.5 multiplied by 3.5, तो ये हो गया 55 multiplied by 3.5। बाद में डिवाइड करेंगे ना। नंबर ऑफ कॉइन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन हमको निकालना पड़ेगा जो कि मेल्ट करके इसको बनाया गया है ना। वॉल्यूम ऑफ कॉइन, पाई आर स्क्वायर एच। Height is given 2 mm and diameter is given 1.75 meter. So diameter is 1.75 centimeter and the height is 2 mm. Height is h is 2 mm. So we have to change into centimeter. So 10, we will divide 10, that 0.02 सेंटीमीटर। तो हाइट जो आया वो 0.2 सेंटीमीटर आएगा। हम लोग 0.2 सेंटीमीटर लिख देता हूं, 10 से डिवाइड करना पड़ा, एंड रेडियस 1.75 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग पुट करेंगे यहां पर, दैट इज पाई रहने देता है, पुट ही कर देता हूं 22। r इज 1.75 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.75 बाय 2। हाइट इज गिवन 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ पॉइंट हमको डिवाइड फिर करना पड़ेगा। So number of coin multiply by volume of coin, आप coin लिख देता हूं, equal to volume of cuboid So number of coin equal to इस वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। सो 55 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइड बाय दिस वन 22, और बाय 7 था तो 7 ऊपर लिख दिया, इंटू 1.75 इंटू 1.75, 2 ऊपर चला जाएगा, एंड नाउ 0.2 दिखाई दे रहा सर? उस साइड नहीं दिखाई दे रहा है, लेफ्ट नहीं दिखाई राइट दे रहा साइड नहीं सर। थोड़ा सा यहां नहीं दिखाई दे रहा। यस सर। ऑलराइट, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू मैं यहां लिख देता हूं, यहां दिखाई देगा
55 multiply by 3.5, then we will divide this one. So divide करने के लिए यहां तक जाता, 22 multiply by 1.75, 0.2 multiply by 7 multiply by 4, ये कर दिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने से पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं। ये 100 कर देता हूं, ऊपर 100, और ऊपर और चल जाएगा, बाद में इसको तो करता हूं। 22 175 मल्टीप्लाई बाय 175 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.2, इसको रहने दिया। अब इसको देखिए कि मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो ये 4 आएगा और ये कितना आएगा, 7 आएगा। ये 4 आएगा, ये 7 आएगा, ये 2 आएगा, ये 5 आएगा। ठीक है, ये 7 7 कट गया। ठीक है, और ये 5.5 आएगा। तो बचा क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 0.10 हो जाएगा वो, तो 5 मल्टीप्लाई बाय ये 10 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 4, तो एक 4 कट गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, कुछ छूट गया क्या, 100 छूट गया क्या, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100, एक लगता है 4 छूट गया है, चार्ज 4 कट गया क्या, 4 किससे काटा मैं, 2 2 4, और एक 4 छूट गया ऊपर में। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और दैट इज 25 मल्टीप्लाई 400 एंड 400 कितना आया, 400 आया। इस प्रकार से 400 कॉइन आएगा। दिखाई दे रहा है 400? नो सर। 400 नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है। ये सॉल्व करने के बाद दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर हाँ, उधर राइट साइड नहीं दिख रहा है। यहाँ नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा नो है। सर। दिख रहा है, देखिए आधा को दिखता होगा, आधा को नहीं दिखता होगा, पता नहीं क्यों नहीं दिखता आधा को। दिख रहा है। अच्छा ठीक है, और नेहा कुमारी दिख रहा है? नेहा, संध्या राज, है ही नहीं। संध्या नहीं है, संध्या राज है। तुम लोग मोबाइल खोल कर बाहर चल जाती हो, यही है पढ़ाई नहीं सर। करती हो, खाली ऑन कर। हाँ तो ये दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, ऑल राइट। सो टुडे क्लास इज ओवर, और हम लोग आज यहीं तक क्लास करेंगे। थैंक यू। ठीक Thank you, है sir. सर, बाय सर।